حوالہ جات دیے ہیں، حوالہ جات نوٹ کیجئے۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 661۔ دوسری کتاب ہے سیرت المہدی حصہ سوم، صفحہ نمبر 720، اور روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 620۔ اس کے اوپر یہ مرزا قادیانی کے اوپر درود پاک لکھا ہوا ہے، اور یہ درود کیا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ وحی نازل ہوئی ہے مرزا قادیانی کے اوپر، بقول ان لوگوں کے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ یقینی سی بات ہے یہ شیطانی وحی ہے، تو وہ جو شیطانی وحی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے جی اللہ کی طرف سے یہ مرزا قادیانی تیرے اوپر درود و سلام نازل ہوا ہے، صلی اللہ علی محمد و علیک، صلی اللہ علیکہ و علی محمد، اے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح، تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ لاکھ سلام ہو۔ سلام علیکم طبتم فادخلوہا آمنین، سلام علیکہ جعلت مبارکہ۔ یہ سارے درود جو ہیں وہ میں کتابیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ تذکرہ کا ایڈیشن ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اولڈ ایڈیشن ہے، تو نئے ایڈیشن کے اندر اس کا صفحہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بدل دیا ہو۔ دوسری کتاب ہے جناب روحانی خزائن جلد 1 کا جو ابھی میں نے حوالہ دیا، اور تیسری جلد جو حوالہ دیا وہ تھی سیرت المہدی، اور اس کی 2 جلدیں ہیں، تو یہ جلد اول کے اندر 3 حصے ہیں، حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم، تو آپ حصہ سوم کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درود پاک جو ہے صلی اللہ علی محمد، یہ مرزا غلام قادیانی کو بھی یہ صلی اللہ علی محمد کہتے ہیں۔ اسی تذکرہ کے یہ دیکھیے، یہ تذکرہ ہے، یہ لائٹ پڑ رہی ہے، اللہ کرے یہ نظر آ جائے آپ کو کیمرے کے اندر، اس کے الٹی سائڈ پہ جائیں، اور یہ انگلش کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مرزا قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے، سب سے نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے پیس بی اپون ہم۔ یہ آپ ذرا دیکھیے گا کیمرے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو پیس بی اپون ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صلی اللہ علی محمد کی وہ انگلش کے اندر ٹرانسلیشن ہے۔ آج میں ٹک ٹاک کے اوپر ایک براڈ ہے اور قادیانی مربی ہے جناب میر سلیم مائنڈ روسٹر، اس کی براڈ کے اوپر گیا تو انہوں نے ایک ٹائٹل لگایا ہوا تھا، ٹائٹل کے اوپر مرزا قادیانی کی تصویر ہے، نیچے لکھا ہوا ہے احمد اور صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام بھی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جا کے پوچھ لیا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے یہ اس سے مراد کیا، کس کو سمجھتے ہو؟ اس نے اللہ اعلان کہا، اس نے کہا ہم مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، احمد اور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مرزا کو کہتے ہیں۔ اگے تے اسی بین وجانے ہیں، لیکن جیڑی شاید مجھ نہیں ہے او دے اگے تے اسی کی کریے، پھر سانوں تے نہیں پتہ لگدا اے مجھ تے اے غیر مجھ۔ نہیں گل اپنی سنانی ہے، نہیں میں گل کرتا میں انہاں نوں سارا علم ہے، سارا پتا ہے، لیکن جان کے نہیں مننا، ضد لگی ہوئی ہے، ضد لائی ہوئی، بس نہیں مننا بس۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک دوست آئے نے، میں انہوں نے ذرا لے لگا، ہاں کرو کرو کرو۔ ایک میوٹ رکھو، بہت شکریہ۔ جی مبشر صاحب صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی جناب میر سلیم صاحب، ہیلو۔ جی جی آ رہی ہے تھوڑی آواز، کرو گل۔ اچھا جناب یہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو پوسٹر آپ نے لگایا ہوا ہے جی تو یہ مرزا صاحب کے بارے میں لگایا ہے آپ نے؟ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو آپ نے لکھا ہے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد ہے یہ مرزا صاحب ہیں؟ ہاں جی اچھا، تو اوپر محمد ہی نام اور محمد ہی کام، تو یہ بھی محمد صلی مرزا اللہ علیہ وسلم کے صاحب بارے میں، جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے محمد کون سے محمد؟ وہ جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں وہ پردہ فرما گئے، ان کے اچھا ان کے بارے میں، صحیح ہو گیا۔ تو
अलैकस्सलाम, तो ये किसके बारे में? یہ وہی شعر ہے نا، محمد ہی نام اور محمد ہی کام علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہی پوچھ رہا تھا جناب۔ ٹھیک، بہت شکریہ شکریہ جناب۔ جناب۔ ٹھیک، صحیح جی۔ ابھی یہ ہے کہ وہ دوست جو پہلے ہمارے ساتھ آئے تھے، اگر وہ دوبارہ آ کر بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ مبشر حسین صاحب ہیں، بریلوی ہیں، اور ختم نبوت کے نام سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر مناظرہ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے اور اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ مرزا غلام قادیانی کو محمد سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ایک چیز تو واضح ہوگی۔ اب احادیث سے میں چند حوالہ جات آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا اور احادیث کی کتب کے اندر یہ مروی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، بخاری شریف ہے، اور میرے ہاتھ میں جو مطبوعہ ہے وہ دارالسلام للنشر والتوثیق الریاض کا یہ مطبوعہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 66 بلکہ 62 کے اوپر حدیث نمبر ہے 349۔ ٹھیک ہے، تو ویسے تو خطاطی کے طور پر جہاں پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ملے گا آپ کو، لیکن یہاں پہ واضح طور پہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ متنن جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا درود آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر بھی آپ کو یہ مطبوعہ ہے میرے پاس دارو ابن کثیر کا، اور اس کا صفحہ نمبر 126 ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر 163/263، کیونکہ اس کے جو رقم ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پھر بٹے کی صورت کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی ان نمبروں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متنن ہے، یعنی متن کے اندر یہ چیز شامل ہے، نہ کہ خطاطی کے ذریعے وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی حدیث نمبر 15 کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا، متنن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو درود پاک ہے یہ آپ کو ملے گا۔ اچھا، یہ حوالہ جات قادیانی کتب سے بھی میں نے دکھا دیے، احادیث سے بھی آپ کو دکھا دیا۔ اب آ جاتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے مقرب فرشتے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، تم بھی زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ اب اس آیت کو لے کر کے اور ان احادیث کو لے کر کے 1400 سال ہو گئے، آج تک تمام ہمارے مسلمان، چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہیں رکھتے، اور چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے مسلمان ہی کیوں نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلے آ رہے تھے، اور وہ ایک ہی ہستی کے لیے۔ وہ کون سی ہستی؟ جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ شریف میں مدفون ہوئے، ان کو محمد سمجھتے رہے اور احمد بھی سمجھتے رہے، اور ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے رہے۔ یا دیگر بھی درود پاک بہت سے ہیں تو وہ پڑھتے رہے، درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہے، اور بہت سے درود پاک، درود تنجینہ ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھتے رہے، تو یہ کس کے لیے پڑھتے رہے؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب مرزا غلام قادیانی جب آیا ہے اور اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ ذات محمدی کا دعویٰ اس نے کیا کہ محمد ہی میں ہوں۔
अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपके और भी इल्म में इजाफा करता चला जाऊं कि बहुत से लोग आए जिन्होंने नबूवत के दावे किए। मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम बहुत बड़ा नाम है मुद्दईयान नबूवत के अंदर। असवद अंसी है और दीगर बहुत से आए। बहाउल्लाह ईरानी तो मिर्ज़ा कादियानी के दौर के अंदर ही आया। तो किसी एक ने ज़ाते मुहम्मदी का दावा नहीं किया। सब ने नबूवत के दावे जरूर किए, लेकिन किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि उसने ये कहा कि मैं मोहम्मद ही असल में मैं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी है जिसने ना सिर्फ नबूवत का दावा किया बल्कि ज़ाते मुहम्मदी का ही दावा कर दिया कि असल ज़ाते मुहम्मद मैं हूं। वो कलमातुल फसल के अंदर आप वो मुकम्मल हवाला जात तो मेरी किताब में आप देख लें, असल स्कैन मैंने लगा दी है किताबों की। कलमातुल फसल के अंदर मिर्जा कादियानी का बेटा कहता है वो असल कुरान जो है ना वो दुनिया से उठ गए, अब दोबारा मोहम्मद को दुनिया के अंदर भेजा गया और ये कुरान उसके ऊपर नाज़िल, यानी मिर्जा कादियानी के ऊपर, यानी उसके बाप के ऊपर। वो कहता है मोहम्मद के दो जन्मों में, एक मोहम्मद तो वो पहले 1200 साल 1300 साल पहले तशरीफ लाए, वो तो विसाल फरमा गए। अब मोहम्मद का दूसरा जन्म हुआ है, यानी पैदाइश हुई है वो कादियान के अंदर। वो मेरा बाप मिर्जा गुलाम कादियानी, और उसके ऊपर ये कुरान नाज़िल हुआ है। तो ये जो मौजूदा कुरान है ना, ये कादियानियों के अकीदे के मुताबिक ये वो वाला कुरान है जो कि मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। तो बहरहाल आज के लिए इतने ही काफी। ये एक छोटे से टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा था। तो मजीद छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने का सिलसिला ये शुरू किया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब कभी हम लाइव हों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो जाए। एक काम और आपने करना है, आपका ताउन दरकार है। देखिए हमें पहली दफा ये पता चला है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई हमारे सुनने देखने वालों को इन चीजों का पहले पता था कि नहीं पता था, या हमारी स्पीच से इनको ये चीज पता चली है। दूसरा काम ये कि अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है और आपका अकीदा पुख्ता हुआ है, या आप इस काबिल हुए हो कि भाई आप कादियानियों से बात कर सकें, तो भैया आप नहीं चाहते कि आपके भाई, आपके दोस्त, अहबाब, उनको भी इल्म मिले, उनका भी अकीदा पुख्ता हो जाए, तो आप अपने दोस्तों को हमारा चैनल मुतारफ करवाइए। उनको कहिए कि ये मुफ्ती मुबशर शाह का ये चैनल है, ये लिंक है, खत्म नबूवत टाइम्स इसका नाम है, तो इसको सब्सक्राइब करो भाई, और उनको अहमियत बताएं इस चैनल की और हमारी वीडियोस की, तो वो भी जुड़ जाएंगे। उनके घरों के अंदर भी हमारी वीडियोस जाएंगी, लोगों के अकायद जो है ना वो दुरुस्त हो जाएंगे और कादियानी फितने से बच जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, किस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी? जी सर, एक आया था बंदा उलमा के खिलाफ हुई, तो हमने उसको बोला कि या तो तुम इंजीनियर के स्टूडेंट हो, या कादियानी हो, या मुल्हिद हो। कहता है मैं तीनों में से नहीं हूँ, लेकिन मौलवी सारे झूठे हैं, मौलवी सारे जो है ना वो गुमराह करते हैं लोगों को। चला गया अब तो। वो एथियस्ट दैरिये होते हैं जो लिबादे ओढ़ के आते हैं, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आते हैं। असल में उनका कोई दीन मजहब नहीं होता, मजहब बेजार तबका होता है ये। और कोई देखें, कोई कादियानी
یہ لڑکے ہی بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کون میرا ہے۔ خیال ہے اس کا تھوڑا کنسیپٹ برا ہے، اس کو ایسے لوگ ملے جو اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکے، تو وہ شاید ان سے بیزار نظر آتا ہے، اس اب کو صحیح انسان نہیں ملا۔ یہ ایسے ہی ہے۔ جی وہ بول رہا تھا کہ شیعہ جو بات کرتے ہیں وہ سننے نہیں کے اعلان کرتے ہیں، اور جو وہابی ہیں وہ میرا خیال ہے سنی کے خلاف کرتے ہیں، اور سنی شیعہ کے خلاف، وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا، اس سب میں وہ پھنسا ہوا انسان ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بندہ مذہب بیزار ہو جائے تو پھر ایسے ہی وہ کیڑے نظر آتے ہیں اس کو ہر جگہ۔ ہم خود یہ چاہیں گے کہ ہمیں وہ ہمیں گائیڈ کریں جو ان سب سے پرے ہوں، جو اس سے مسلمان ہوں، نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی، ہمیں وہ بات بتائیں جو حدیث بتا رہی ہے، جو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں یا وہ لڑکا کہہ رہا تھا؟ یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ میں کہہ رہی ہوں، اچھا آپ کہہ رہی ہیں۔ ہاں یہ یہاں میں پہ اس کی بات نہیں کر رہی مجھے، کیونکہ اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہا تھا۔ ہاں جی، یہ ہماری جو برادیں ہوتی ہیں نا، ہماری برادیں ہوتی ہیں مرزا غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کے رد کے اندر۔ ہم لوگ اور کسی موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ موضوعات تو پھر ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اگر ہم ان موضوعات کو چھیڑیں گے تو ایک طویل سلسلہ شروع ہو جانا ہے، اس لیے ہم کسی اور موضوع کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی کو جانے دیتے ہیں۔ اور وہ تو ایسا ہی بات ہے، وہ تو مردود ہے، دنیا پہ آئے ہوئے ہیں، لعنت ہے ان کے اوپر ساری کائنات کی، ہر چیز کی۔ میری بہن استاد محترم جب بات کر رہے ہوں تو مہربانی کر کے نا مائک میوٹ کر لیا کریں، استاد محترم کی بات مکمل ہونے دیں، پھر آپ جی جو جی سوال جی کرنا ہے۔ شکریہ۔ میں اصل میں جب آئی تھی نا تو تب وہی بات ہو رہی تھی کہ مولوی اور اس سب پہ وہ بات کر رہے تھے، تو میں بس ان کی وہی بات سن سکی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا یار، وہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں سلسلہ، یوٹیوب کے اوپر بھی ابھی لائیو ہوگا۔ وہ آدھی ویڈیو ہو گئی تھی اور مزید جو آدھی رہ گئی ہے اچھا یہ 5 منٹ 6 سیکنڈ تک گفتگو ہوئی تھی۔ 1 منٹ، ابھی براڈ سارے دوست یار شیئر کرو اور قادیانیوں تک یہ براڈ پہنچنی چاہیے، ڈبل ٹیپ جاری رکھیں۔ ہاں یہ ویڈیو آ گئی ہے، چلیں 5 منٹ سے شروع کر لیتے ہیں۔ ڈبل ٹیپ کرو بھائی، ڈبل ٹیپ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی پوری ویڈیوز کو لے کر کے اس کا آپریشن کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اس کی ویڈیو، اس کا پورا آپریشن کیا اور اس کے 2 حصے آپ لوگ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ تو ابھی ہم نے ایک اور ویڈیو شروع کی ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کا نام ہے کیا قادیانی کافر ہیں؟ یہ بھی سکرین میں شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ والی ویڈیو شروع کی ہے، ٹوٹل اس کی ٹائمنگ جو ہے
وہ 8 منٹ 56 سیکنڈ کی ہے اور ہم تقریباً 5 منٹ تک ہم پہنچے تھے. تو وہیں سے اب ہم ویڈیو شروع کریں گے اور اس کو مکمل سنیں گے اور جہاں پر اس کی خرافات ہوں گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ ابھی ہم وہ والی ویڈیوز لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو قادیانیوں کے بارے میں، جو قادیانیوں اور قادیانیت کے بارے میں انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی جو ویڈیوز ہیں نا، ان کا ہم جواب دے رہے ہیں. کیونکہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو جی سب سے زیادہ ختم نبوت کا کام میں نے کیا ہے اور قادیانیت کا جو رد ہے وہ میں نے کی ہے. تو لہٰذا ہم انجینئر کی اب جو قادیانیت کے خلاف جو ویڈیوز ہیں ان کو لے کر کے پورا آپریشن کر رہے ہیں اور اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا واقعی ہی مرزا جونیئر جیلمی اپنے دعوے کے اندر سچا ہے کہ اس نے ان ویڈیوز کے اندر رد کیا ہے کہ نہیں قادیانیوں کا. ابھی تک جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ 1.5 ویڈیو ہوئی ہے، 1.5 ویڈیو میں ایک لفظ بھی اس نے قادیانیوں کے خلاف نہیں بولا بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہی بولتا رہے. چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں نے لنک شیئر کر دیا، اگر کسی نے کال کرنی ہو تو اس لنک کے اوپر آپ شامل ہو سکتے ہیں. چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ قادیانیوں کو کون سی چیز جو ہے وہ کانفیڈنس میں رکھے ہوئی ہے، وہ ہے توحید. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کسی دربار پہ نہیں جاتے، ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم پیروں فقیروں والے نہیں، ہم بابے بزرگوں والے نہیں. تو وہ دیکھیں کس طریقے سے ان کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. عاجز کی جو نئی کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ تو بہت جلد آ جائے گی، قادیانی توحید. اس کے اندر یہی چیز ثابت کی گئی ہے کہ قادیانی لوگ مسلمانوں والے خدا کو نہیں مانتے. خود مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ ایک منام میں نے اپنے آپ کو خدا بنے دیکھا اور میں نے پھر یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں. پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی جب میں خدا بن گیا تو پھر اس کائنات کو میں نے تخلیق کی ہے، میں نے جنت بنائی، دوزخ بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنائے، پھر زمینوں کی طرف آیا تو زمینیں بنائیں، پھر میں نے آدم کو تخلیق کیا. تو پوری کائنات کو از سر نو میں نے تخلیق کی ہے، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے. اب دیکھیں اس چیز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے مرزا جونیئر جیلمی کس طریقے سے جناب ان کی فیور کر رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے اور قادیانیوں کا دفاع کر رہا ہے. ٹک ٹاک کے دوست، یوٹیوب کے دوست، فیس بک کے دوست، ٹویٹر کے دوست، ابھی 4 پلیٹ فارم کے اوپر یہ ہماری ویڈیو لائیو ہے. سب سے گزارش ہے شیئر کریں. ٹک ٹاک والے ڈبل ٹیپ جاری رکھیں، ڈبل ٹیپ آپ نے کرتے رہنا اور شیئر کرنا ہے. تمام دوست یہ کام کریں، آپ لوگ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو اپنا کام جو ہے نا وہ بانٹ لیتے ہیں. یہاں رانا مون صاحب تشریف لائے ہیں. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اور بس دعاؤں کی درخواست ہے. کوئی بات کریں گے کہ میں آگے ویڈیو چلاؤں؟ بات تو کرنی ہے لیکن ان دونوں شیطانوں کے متعلق نہیں ہے، لیکن ہے قابل دیانت مذہب کے حوالے سے ہی، اگر آپ بتا سکیں. اچھا وہ پھر بعد میں کر لیتے ہیں جی، تھوڑی دیر بعد. اچھا چلیے. احمد علی صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جی جی آپ سنائیے.
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने जब स्ट्रीमिंग की थी आपकी चैनल से, तो शुरुआत आपकी चैनल से ही की, तो मैं यही कहूंगा ये शैतान है, कालानुमा शैतान है, और ये हर रूप में इसकी हर एक बात शैतानी है, और ये एक आने वाले दिनों में बड़े दावे करने वाला है, और सबसे ज्यादा भयानक और आजकल के जमाने का ये दजाल है, क्योंकि हदीस पाक है दजालून, ये उनका सरदार होगा, आजकल के लोगों का दजालूनों का ये सरदार है। इसका काम यही है कि राय हक से मुसलमानों को हटाना, उनके दिमागों को मुंतशिर करना, और उनको उन बातों से हटाना जो हक की बात करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका जवाल और इसका अंत भी वैसे होगा जिसके इसके वालिद मोहतरम मिर्जा अहमद कादियानी का हुआ था, वही होने वाला है। बिल्कुल क्योंकि आपके सामने कोई नहीं गिरता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एहसन मुगल साहब तशरीफ लाए हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। शाह साहब, सबसे पहले तो आपकी दुआओं से, आपको याद हो तो मैंने आपसे दुआ कराई थी अपने लिए। अच्छा, मैं खैर खैरियत से हॉस्पिटल से वापस आ गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शाह जी, आमीन। शाह जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? बस मुलाकात हो तो गई है अभी, और क्या। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, तो सोशल मीडिया पर ही हमारी मुलाकातें होती हैं। मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ, मैं आपके पास नहीं, वो असल में मैं पीर नहीं हूं ना। जब पीर बनूंगा तो आस्ताना भी खोलूंगा, तो उस टाइम फिर आप नजराना भी लाइएगा, हाथ भी चूमिएगा, ठीक है ना जी? हमारे लिए तो आप सब कुछ हैं। हमारे लिए तो वो ये है कि बस मैंने आपके लिए दुआ की, आप मेरे लिए दुआ कर दें तो बदला पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है? अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए। इसी तरह आप हमारी रहनुमाई करते रहें और हम आपसे इल्म हासिल करते रहें। आमीन जी। अच्छा, आप हजरात सभी तशरीफ फरमा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद हमें ज्वाइन कर चुकी है, टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। वीडियो आगे सुनते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं। डबल टैप जारी करें भाई, डबल टैप चुक। वो कहते हैं यार ये बरेलवी देवबंदी तो है मुशरिक, शिया भी बहुत शिरक करते हैं, अहले हदीस कुछ बेहतर है। वजिया कन्ना से यानी कादियानी कहते हैं कि शिये ते बरेलवी ते देवबंदी ते ए मुशरक ने ना, और ए जेडे भाबी ने ना, ए कुछ बेहतर ने। यो ही गल है पुत्र, यही बात, और यही बात तू भी कहता है। तू भी वही बात कह रहा है जो कि कादियानी कहते हैं, हाँ जी, और उसी चीज को तू रिपीट करता है। आगे बढ़े जी। कम से कम शिरक नहीं करते, कम से कम शिरक नहीं करते हैं, सही है। तो वो तो सर किसी खाते में नहीं मान रहे आपके फिरकों को। सबसे बड़े जो मुशरक है ना इस दुनिया के अंदर, जो इस्लाम के लिबादे के अंदर, इस्लाम के लिबादे के अंदर जो मुशरक, वो दो ही मिर्जे हैं। एक मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, एक मिर्जा जूनियर जेल में। मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी भी अपने आप को खुदा कहता है, और अगर कादियानियों से हम गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं वो तो मिनी खुदा है, बड़े वाला खुदा तो वो ही है, वो अल्लाह पाक ही है, वो तो मिनी खुदा है। और मिनी खुदा का कीदा इसका भी है, मिर्जा जूनियर जेलमी का भी। वो भी कहता है मुझे अल्लाह ने ऑफर करवाई है, ये भी कहता है मुझे अल्लाह ने ऑफर करवाई है, और दोनों ही शिरक के प्रमोटर हैं, अकीदा शिरक के प्रमोटर हैं। और दोनों मिर्जे ही बकाया सब मुसलमानों को मुशरक समझते हैं, अपने आप को सिर्फ जनाब मुसलमान समझते, बकाया सारे काफर हो गए, मुशरक हो गए और बिदती हो गए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। जब इतनी बड़ी खराबियां किसी को नजर आ रही हो ना, तो वो अपनी खराबियां फिर पीछे चली जाती हैं उनकी, ये एक नेचुरल हो जाता है।
ठीक है, जिस तरह हम जब अहले हदीस को कहते हैं यार आप अपनी इस्लाह करो अल्लाह के बंदो, मतलब वो कहते हैं नहीं ठीक है हमारे अंदर यजीदियत है तो हम तौहीद तो सीख है ना जी, हमारी असल चीज तो तौहीद है ना, वो भी यही कह रहे हो, ठीक है ना, असल चीज तो तौहीद है ना जी। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब चूंकि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये डिसीजन हो चुका है। अब देख लें कि अभी तक उसने एक बोल भी कादियानियों के रद्द में नहीं बोला। उनको वो पक्का सच्चा मोहिद साबित कर रहा है, वो साबित कर रहा है, एडी चोटी का उसने जोर लगाया है कि कादियानी मुसलमानों वाले कुरान को मानते हैं, मुसलमानों के नबी को मानते हैं, मुसलमानों के किबले को मानते हैं, मुसलमानों के खुदा को मानते हैं। अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई है आपके सामने, आखिर में अब नतीजा अखज करने लगा है। कहता है कि चूंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव एक इशू बन चुका हुआ है, क्योंकि 1974 की असम्बली ने इनको नॉन मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर कर दी है और गवर्नमेंट की तरफ से ये काम हुआ है। अब क्योंकि तुम लोगों के गले के अंदर वो पटा डाल चुका है ना, अब जरा सुनिएगा। आइन का हिस्सा है इसलिए एक सेंसिटिव इशू बन चुका है। हाँ, आइन का हिस्सा। अब मैं खुल खिला के तो नहीं इनको मुसलमान कहता, वो सेंसिटिव इशू ये है कि मैं खुल खुला के इनको मुसलमान नहीं कह सकता। हाँ, वो अपनी करतूतों से उनको मुसलमान बना रहा है। वीडियो का नाम क्या रखा हुआ है? हाँ जी, क्या कादियानी मुसलमान है? क्या कादियानी खत्म नबूवत को मानते हैं? क्या मिर्जा कादियानी काफर है? ये वीडियो के नाम है। और अंदर क्या है? अंदर तो मुसलमानों को रद्द है। वो मिर्जा कादियानी का तो तूने रत्ती बराबर नहीं रद्द किया। कौन सा रद्द किया तूने? मैं ये कहता हूँ काफिर डिक्लेयर किया, बिल्कुल ठीक है, प्रोसिक्यूशन ना करें, इल्मी तरीके से दलाइल आप सामने रखें, इनकी इस्लाह की कोशिश करें और ये इल्मी तरीके से। यार की इंग्लिश दे विच बोल गया है, मैनू जरा समझाओ। प्रोस्टिट्यूशन ना करें, ये क्यों दी है? की बला है प्रोसिक्यूशन सर जी? ओ की ये कह रहा है अपना अपने जो सर जी इसका वो पढ़नाना वगैरह की जो ड्रामेबाजी नहीं जड़ी करते हैं कि साडे ते जुल्म हुंदा, ज्यादती हुंदी आ, सानू हकूक नहीं मिल रहा है, एनू कहंदे की आंदा पिया जिया दसी सर जी। है जेडे ड्रामे करदे आ ना मरज़ई के साडे ते जुल्म हुंदा, सानू मजहबी आजादी नहीं हैगी, साडे ते हकूक नहीं मिलदे। पहले भी यही गुफ्तगू हमने की है कि बार बार उस चीज को रिपीट करता है जो कादियानी कह रहे हैं कि देखो जी हम मर गए, खप गए, जुल्म हो गया, हमें कत्ल कर दिया, हमें डाके मारे, हमारी लड़कियों को भगा के ले गए ये मौलवी। हम कहते हैं हमने आज तक मक्खी नींद के घर की मक्खी तक किसी मुसलमान ने नहीं मारी। और बार बार उनकी वो ही बात रिपीट करता है। ये प्रोस्टिट्यूशन ना करें, रोंदा इंग्लिश नु। कादियानियों का दिफा है ये कादियानियों का रद्द उसने कहां पे किया वो बताओ ना। है कोई मरज़ई मिर्जा जूनियर जेलमी का मानने वाला चहेता, कोई फॉलोअर, कोई साहबी जैली साहबी जो बने हुए, आओ ना सामने बताओ उसने रद्द किस जगह पे की है, हमें भी तो पता चले ना कि फलां जगह पे उसने रद्द किया है भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब ये प्रोसिक्यूट करना जो होता है ना, इसका मतलब होता है जुल्म और सितम करना ना, मतलब अब वही यार मुझे सब समझ आती है। तो बात ये है कि भाई कोई जुल्म और सितम नहीं भाई, कोई हमें बता दे, कोई मरज़ई आके बता दे, मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोअर बताए कि कितने कादियानियों के साथ जुल्म हुए, कौन कौन से हुए, हमें दो लिस्ट। उल्टा कादियानी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये जो इशू बना था 1974, उससे पहले हुआ ही ये था कि जनाब इन कादियानियों ने चिनाब नगर में वो लड़के थे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, हाँ जी, उनकी ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया था, उनको मारा कूटा था। ये काम ही वहां से शुरू हुआ था। फिर ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में छा जाती है। जितना भी मैंने आज तक चकवाल के अंदर वो मिलाद का जुलूस निकाल रहे हैं, कादियानी मिर्जवाड़े के करीब से गुजरे हैं, उन्होंने गोलियां चला दी हैं। कादियानी ने हमारे बंदे मार दिए मुसलमानों के, वो किसी गिनती शुमार में नहीं है। अभी ये पिछले दिनों ये अभी
अभी जो हुआ है, हाँ जी, मिलाद के जुलूस के ऊपर हमला, पता नहीं शेखुपुरा था, कौन सा इलाका था वहां पे, वो कादियानियों ने की है। बंदे हमारे मरते हैं, इमारतें हमारी जलती हैं, मसाजिद हमारी जलती हैं, लूट मार हमारे घरों की होती है, हमारा किसी गिनती शुमार में नहीं, और कादियानियों को कभी कुछ नहीं हुआ। तो इस जैसे में उल्लू के पट्टे आके उनको मुकदमे को और मजबूत करते हैं। मैंने पहले कहा है कि ये कादियानी करिंदा है, ये मिर्जा मसरूर का पेड़ है, उसने इसको रखा हुआ है, वो पाल रहा है इसको। और बेशर्मी की इंतहा, सामने बैठे हुए हैं मर्द बंदे इसके, किसी एक की जुर्रत नहीं हुई कि इसका गिरेबान पकड़ के इसको कहे तो की बकवास कर रहे हैं पे। वो 1974 में तेरे प्यो गए थे, वो उलमा ही थे, वो बाबे ही थे जिनको तू कह रहा है बाबों का खुदा कोई और ते किताबां दा कोई और। वो तेरे प्यो नहीं सी कोई कब्र चोट के आया, ये उलमा ही थे। आगे सुने जी। जिशाद जी, ये इसके साथ अपना एक छोटा सा इंटरव्यू है, जरा अगर इजाजत हो तो मैं लगाकर आपको सुना दूं। वो यानी साहब बाद में ना ये वीडियो खत्म हो जाए, बस मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ बस, तो ताकि मैं कह रहा हूँ अभी की निश्चित में ये वीडियो कम से कम कंप्लीट मैं कर दूं, तो उसके बाद इंशाल्लाह काले भी लेते हैं और तफसीली गुफ्तगू भी करते हैं इंशाल्लाह। दलाइल इसीलिए नहीं इनके सामने रखते कि इनको पता है कि दलाइल इनके सामने रखे तो अपनी भी छुट्टी हो जाए। हेलो, अब ये कितनी बड़ी बात कर गया, ये कहता है ये कादियानियों के सामने ये उलमा इकराम, एक तरफ उलमा इकराम एक तरफ कादियानी, कहते हैं ये वाले उलमा इकराम कादियानियों के साथ पास दलाइल नहीं रखते, इन्होंने कभी दलाइल से बात नहीं की। अगर ये दलाइल दें इनको तो इनकी अपनी छुट्टी हो जाती है मुसलमानों की। वो मुसलमानों के अंदर कौन है? सबसे बेहतरीन तो है वाबी, और उनसे नीचे वाला तबका शिया, फिर देवबंदी, और सबसे नीचे बरेलवी। तो ये तीन तो खुद वो माने है ना कि भाई वो मुशरक है, वाबी थोड़े से सही है। तो इन सब की छुट्टी करवा दी हुई है कादियानियों ने, और ये दलाइल से बात नहीं करते। आप अंदाजा कर लें। हाँ जी, ये मैं आपको एक किताब दिखाता हूं, जरा देखिए। ये सिर्फ दो किताबें मैं लेके नमूने के तौर पे। पहली किताब है एहतसाब कादियानियत, ये देख लें जी। दूसरी किताब है मुहासबा कादियानियत। ये वाली जो किताब है ना 60 जिल्दों के ऊपर है, और इसकी 15-16 जिल्दें तो उसकी भी हो गई हैं जी। आप अंदाजा कीजिए। और ये तो मैंने एक देग में से ना एक दाना चखाया आपको, एक दाना। हजारों किताबें लिखी हैं उलमा ने, और तमाम मकातबे फिक्र के उलमा ने। ये किसी एक मकतबे फिक्र के सारे ये सेहरा नहीं जाता, तमाम मकातबे फिक्र ने बड़ा काम किया। 1974 की असम्बली के अंदर भी तमाम मकातबे फिक्र के बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर मौजूद थे, और वो कह रहा है कि ये तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये दलील से बात करता ही नहीं कादियानियों के साथ। देख लें यार, यानी इसको जहालत तो नहीं मैं कह सकता, ये पूरी एक सोची समझी स्कीम पीछे से जो मिर्जा मसरूर ने जो इसके मुंह के अंदर लुकमा डाला है ना, वो ही उगल रही है। हाँ, जहालत नहीं है, ये काका नहीं है, सब इसको पता है, सब पता है इसको। आगे आगे बढ़े जी। लो दंदियां कटदा जे पे, ओ दंदियां कटदा है पिया।
दनिया कट दे पे दोबारा सुने। इसीलिए नहीं इनके सामने रखते, दलाइल आप सामने रखें, इनकी इस्लाह की कोशिश करें। और ये इल्मी तरीके से दलाइल इसीलिए नहीं इनके सामने रखते कि इनको पता है कि दलाइल इनके सामने रखे तो अपनी भी छोटी हो जाएगी। हाँ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸਮਝ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ। ਇਹਦੀ ਦੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਸੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਰਾ हो जाएगी। हाँ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हाँ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। यार यकीन मनो देवबंद मकतबे फिक्र के साथ मेरे कई नजरियाती इख्तलाफात हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। कई नजरियाती इख्तलाफ हैं, लेकिन खत्म नबूवत के ऊपर उनका जो वर्क है ना, उस काम को सल्यूट है। वो तू बगैरत इंसान, तू नहीं मानता किसी फिरके को, कम अज कम उन्होंने जो काम किया है तो उसको तो दाद दे दे। आती जाती तुझे खे नहीं है रोंदा इंजीनियर बनन, बांदर जे ना होवे नहीं दे सकता। वो तो आगे छोड़ेगा, उसको क्या पता है कि आगे कितना सेंसिटिव इशू है, ये कितनी बड़ी, ये कैसी दुम है जिसके साथ इतना बड़ा हाथी लगा हुआ है। इनको तो सिर्फ दुम नजर आ रही हिलते हुए जी जी। और मुझे पता है ये जो दुम नजर आ रही है ना आपको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथी है, वो ये है जो मैं बता रहा हूं आपको। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਮ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਦੁਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੁਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੁਮ ਤੇ ਹਾਥੀ। इतना सादा मसला नहीं है, इनको दावत सिर्फ वो पेश करेगा जिसके अपने कायद से। वो मैं हूं। दावत सिर्फ इनको वो पेश करता है जिसके अपने अकीदा ठीक, और दुनिया के अंदर अकीदा ठीक मैं ही हूं। जेलम की अकेडमी के अंदर बैठा हुआ ये मजूरा मिर्जा जूनियर जेल में, बस इसका अकीदा एक ठीक है, और कादियानियों को दावत सिर्फ यही दे रहे, और कोई नहीं, बस सारे फारग हो गए जी। सुन लो जी मुसलमानों, बंद करो सारे चैनल चुनत, सारिया किताबां साड़ दियो। हाँ तुसा कुछ भी नहीं किया, ते जाके सिखो, जाके इस्लाम ते रद्दे कादियानियां ते इंजीनियर साहब माशाल्लाह बैठे ने मशीन महल्ले च, उन्हां को सिखो जाके, हालात वेखे जे जी। भाइयों से लोग बात करते हैं ना व्हाट्सएप पे, और मेरा जो क्लिप है कादियानियों को दावत इस्लाम, वो कहते हैं ये वाला जिस क्लिप का इसने नाम लिया है उसका हमने ऑपरेशन किया है, आपको पता है, कादियानियों को दावत इस्लाम पूरा हमने ठोक बजा के उसका ऑपरेशन किया है। उसके अंदर भी इस वीडियो का जिक्र वो बार बार करता है, कादियानियों को दावत इस्लाम मेरी वीडियो देखो, कादियानियों को दावत इस्लाम मेरी वीडियो देखो। उस वीडियो के अंदर एक बोल भी उसने कादियानियों के खिलाफ नहीं बोला, एक बोल, एक जुमला, एक छोटा सा जुमला भी कादियानियों के खिलाफ नहीं बोला। उल्टा वो तमाम मुसलमानों की तजलील की है उसने, वो हमने पूरा ऑपरेशन की है। इतना सादा मसला नहीं है, इनको दावत सिर्फ वो पेश करेगा जिसके अपने कायद से। हमारे भाइयों से लोग बात करते हैं ना व्हाट्सएप पे, और मेरा जो क्लिप है कादियानियों को दावत इस्लाम, वो कहते हैं पहली दफा किसी ने को बात हमें सही तरीके से समझाई है, हमारा मुकदमा। कादियानी इसको कॉल करके कहते हैं कि देखो हमें तेरी गल समझ आई या मिर्जा जूनियर जेल में ना मौलवियों की समझ को नहीं होंगी पे सन। तू जब बोल उनके बोलेगा तो समझ तो तेरी ही आनी है। हाँ समझ तो आप ही आनी है पाजी, जब उल्टी गंगा बहेगी तो ऐसे ही होगा।
समझा है और हमें उसी डॉक्ट्राइन के ऊपर बताया है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बताया कि उनको किस किस तरीके से धोखा दिया गया। हेलो सुन लिया जी, ओ शुक्र अल्लाह दे अदा करदा पैंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया इनको कि कादियानियों को किस 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 तरीके से धोखे दिए गए हैं। कि धोखा दिया किसने? मौलवियों ने। तो दिफा किसको कहते हैं? किस चीज को दिफा? कादियानियों का दिफा और किस चीज का नाम है? कहते हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताया कादियानियों को कि तुम्हें किस किस तरीके से धोखा दिया गया, तुम्हें किस तरीके से बरेलवियों ने धोखा दिया और तुम्हें काफर करार दिया, और वाबियों ने और शीयों ने और देवबंदियों ने मिल मिला के तुम्हें काफर किस तरीके से तुम्हें धोखा दिया। सुन लिया? आगे दोबारा जरा मैं दोबारा सुन। हमारा मुकदमा समझा है और हमें उसी डॉक्ट्राइन के ऊपर बताया है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बताया कि उनको किस किस तरीके से धोखा दिया गया। लेकिन साथ ही मैंने उनका वो दरवाजा बंद कर दिया जो उनको शैतान वसवसा दिला सकता था ना कि हाँ जी सानू तो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कह रहा, वो मैंने क्लियर किया कि चाहे ओ वण या तुसी हो, हम तो दोनों को ऑन कोई नहीं करते। सीधी सी बात है। यानी सब एक हमें कादियानियों की लिस्ट में डाल दिया इसने। देवबंदी, वाबी, सुन्नी, शिया और इतर कादियानी, पंजे एक लाइन इंज करके खिलोते हैं, सब एक। हम किसी को ऑन नहीं करते। अगर इस्लाम बचा तो जेलम की अकेडमी के अंदर है, इसके अलावा कहीं नहीं आपको इस्लाम मिलना। बस हम किसी को ऑन नहीं करते, इसलिए कि गलती गलती है चाहे कोई भी करे। तो चूंकि ये हमारे मुसलमान फिरके के लोग नहीं कर रहे होते, अपने बुजुर्गों को डिफेंड कर रहे होते हैं, उनको रगड़ा लगा रहे होते हैं, उनको बात समझ नहीं आती, वो इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमारा उड़ाए ना, नहीं उड़ा सकते। मेरे ऊपर कौन सी एलिगेशन लगाएंगे? मैं तो जिसने खत्म नबूवत में नबी इस्लाम की तौहीन करके अपने नामों का कलमा पढ़वा के डाका मारा है, मैं तो अब देख लो जी, ये हो रहा है कादियानियों का रद्द। और वीडियो का नाम क्या कादियानी काफिर हैं, वीडियो का नाम ये है। और उसके अंदर चिश्ती रसूल्ला आ गया जी, बाबे आ गए। तुम्हें तो अपनी वीडियो का नाम रखना चाहिए था कि क्या चिश्ती रसूल्ला वाले काफिर हैं, या ये रखते तुम कि क्या ये बरेलवी काफिर हैं, देवबंदी, वाबी, सुन्नी, शिया ये काफिर हैं। ये नाम रखना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि बातें तो सारी तू इनकी कर रहे। कुफर तो तू इन लोगों का बता रहा है, कादियानियों का कुफर तो तूने कोई बताया ही कोई नहीं, कोई उनके खिलाफ तो कोई बात की कोई नहीं तूने। सबको गलत कहता हूं, ये भी जुर्रत करें तो देखें उन तक दावत पहुंचा देंगे। तो इसमें तो हमें बहुत फीडबैक मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल जितनी मैंने गुफ्तगू कर दी इतनी काफी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन में एक आपकी तरह ही जोइश एक स्कॉलर है, वो रब्बी नहीं है, इज नॉट रब्बी जो उनके प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर है, वो कंपैरेटिव स्टडी करता है रिलीजन्स की, इस्लाम, जोइश, क्रिश्चियन है, हिंदू और ये। उसने भी जब इस्लाम के ऊपर फाइंडिंग्स दी थी अपनी, तो उसने कहा था कि मुझे सिर्फ ये देवबंद और बरेलवी समझ नहीं आया, स्पेशली बरेलवी। बाकियों को मैं कह सकता हूँ कि वो जो है ना वन गॉड के ऊपर स्टैंड लेते हैं। देखो वो ये अगर एक यहूदी रब्बी नहीं है, वो स्कॉलर है, वो बड़ा उनका टीच करता है और लोग उसको जोश बहुत फॉलो करते हैं। ऑर्थोडॉक्स है वो। ऑर्थोडॉक्स जी जी ऑर्थोडॉक्स अभी कहते हैं नया फितना निकला है, हम ऑर्थोडॉक्स हैं। जी जी कदामत पसंद। ऑर्थोडॉक्स मतलब ये नहीं जो शुरू से एक किताब सुन्नत की तरह। ऑर्थोडॉक्स है कौन सी भाई? ऑर्थोडॉक्स किसी को पता है? की बोल गया ऑर्थोडॉक्स? जिस तरह शायद ये जिस तरह खारजी नहीं होंगे इस तरह। ये जीव्स में एक कम्युनिटी है जो एक तो वो हो ज़ोनिस्ट जो ना वो फलस्तीन के साथ लड़ते, दूसरे जो है उनके वो ऑर्थोडॉक्स है, वो नहीं मानते जो ज़ोनिस्ट के लिए मानते। अब वो ये कह रहा है कि मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, इत्थे रख यहूदियों का फिरका हूं मैं। अच्छा इत्थे रख मलंगी, दोबारा सुनो जरा। वो कहता है मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, ये सुने जरा। नया फितना निकला है, हम ऑर्थोडॉक्स हैं। हम ऑर्थोडॉक्स हैं।
हाँ, दोबारा सुने। और लोग उसको जोश बहुत फॉलो करते हैं, ऑर्थोडॉक्स है वो। ऑर्थोडॉक्स जी जी ऑर्थोडॉक्स है। अभी कहते हैं नया फितना निकला है, हम ऑर्थोडॉक्स हैं। जी जी हम ऑर्थोडॉक्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मन गया जे मैं यूतियां दा फिरका। हाँ जी। शाजी जो ये जो होते हैं ना ये कादियानी, इन कादियानियों के लिए इजीली वीजा होता है इनके लिए, ज्यूज के लिए, और ज्यूज में वो आर्मी में भी भर्ती है, हर जगह वो भर्ती है, उनके लिए कोई पूछताछ नहीं है। उनके मिलिट्री ऑपरेटर जो मिलिट्री पायलट भी है वो भी कादियानी औरतें हैं। तो उन सबको ये जो जहाँ जिनकी ये बात करता है ये वही कम्युनिटी है और उसी कम्युनिटी के साथ ये जोड़ता है, क्योंकि ये खुद इसके अकायद जो है वो कादियानी अकायद है, और वो कादियानी अकायदों की वजह से वो सारा कुछ उनकी बारे में ये रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक हो गया। अच्छा अहमद अली साहब, यहाँ हमारे एक नए साथी आए हैं, हसन दीनपुरी साहब जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे सर, जो दीन का आप काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बड़े जानने वाले हैं, बड़े जानने वाले और बड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इससे बड़े मुतासिर हैं, और अपना हमारे मुआशरे को इस जैसे जो है ना फितने बड़ा तकलीफ दे रहे हैं, बड़ा दुख दे रहे हैं। यकीन जाने हम जब इसकी बातें सुनते हैं तो ये सिर्फ इख्तलाफी मसाइल को जो है ना उठा के तो आगे जो है ना अपना सिलसिला चलाता है ये करना। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। असल में फितने का दौर है ना मेरे भाई। हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में फितने ज्यादा होंगे, और फितने ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे टप 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 पे दर पे बरसते हैं। तो वो वक़्त है, यह भी कुफर छाना है, पूरी दुनिया के अंदर कुफर छाना है। फिर आखिरी वक़्त के अंदर जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल होना है, और हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे उन्होंने नमाज अदा करनी है। उसके बाद ये कुफर का कत्ताल होगा, फिर इस्लाम लेवा बच जाएंगे चंद लोग। वो फिर अगला मामला हदीस में बताया, वो उनको लेकर के कोहे तूर के ऊपर चले जाएंगे, फिर याजूज मजूज आएंगे, फिर वो सारा और क़यामत फिर करीब ही आ जाएगी। तो ये तो बढ़ना है भाई, ये तो बढ़ना है। ये आप ये तो भूल ही जाए कि फितना जो उठ गया है वो खत्म हो जाए ना। कोई भी फितना, ये नहीं कि मिर्जा जूनियर जेल में, इसके अलावा भी जो फितने उठेंगे उन्होंने ज्यादा होना है, क्योंकि हदीस ये कह रही है जो फितने उठेंगे ना वो ज्यादा होंगे। और बारिश के साथ मिसाल हजूर अलैहिस्सलाम ने इसलिए दी है, और एक नुक्ता ये भी समझ आता है, बारिश आप गौर करें कि पहले आहिस्ता आहिस्ता होती है, फिर तेज होनी शुरू हो जाती है, फिर उसके कतरों के अंदर जान आनी शुरू हो जाती है, बसा औकात बाद में ओले बन जाते हैं। मतलब यह कि थोड़ी स्लो से शुरू होकर के पहले हवाएं चलती हैं, पहले है ना आंधी वगैरह चलती है, फिर ऐसा छोटी छोटी कतरे आते हैं, दो चार आए, फिर ज्यादा तेज हुए, इस तरीके से। तो ये भी हो सकता है कि ये वो ही पहले वो तेज हवाएं चल रही हैं फितनों की, तो ऐसा ऐसा फितने फिर फितने पे फितना। तो बहरहाल कुछ दौर वो आ चुका है, कुछ आगे फिर आने वाला है मजीद। तो बढ़ना है ये काम, अभी कम नहीं होना। लेकिन इस दौर के अंदर हमें यही है कि हर एक बंदा अपना खुद ही ईमान का मुहाफिज है, उसने खुद ही बचना है। ये भी हदीस ने बताया है कि हर बंदा फिर उस टाइम, साहबा ने पूछा था कि सरकार फिर हम ईमान कैसे बचाएंगे? फरमाया कि हर बंदा खुद अपना मुहाफिज होगा। हाँ, वो एक रिवायत में तो यहां तक आया 7 कोठरियों के अंदर भी तुम्हें छुपना पड़ा तो छुप करके अपने ईमान को बचा लेना। हाँ बिल्कुल ऐसे। और बात तो अपनी की माजरत चाहूंगा जी कि बख्शिश की जो बुनियाद है वो हमारे अकायद हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
अकीदा है। सबसे ज्यादा जो हिट करता है कि हमारे अकायद को और हमारे असलाफ को कर रहा है ये बंदा। हाँ बस ऐसे ही है जी, ऐसे। जज़ाकल्लाह सर, आपने अपना कीमती बहुत वक्त दिया। शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सुनता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली जो है ना अपना देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़े शौक से सुनता हूँ, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ। जी जी, हमारा असल में प्लेटफॉर्म जो है ना वो किसी मकतबे फिक्र के लिए खास नहीं है, ठीक है। और ना ही हमने ना ही कभी फोकस किया है कि हमारी बला से यहाँ कोई सुन्नी, देवबंदी, वाबी, शिया कोई भी आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बड़ा वेट कर रहा था कि इस बंदे को जो है ना लगाम डालने के लिए कोई भी जो है ना बंदा आगे नहीं आ रहा था। तो अब बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे लोग जो है ना आगे आए हैं और इस बंदे को जो है ना उसी की जबान में जो है ना अपना जवाब दे रहे हैं। जी, वो फिर अल्लाह पाक का ये निज़ाम है ना, ऐसे होता है। हर और फ्रोन हमारे मुफ्ती तारिक मुफ्ती साहब भी गए थे उधर, तो उनसे भी ये बंदा भाग गया। हसन दीनापुरी साहब, मैं आपको शादी के बदले जो लगाम घोड़े को दिए जाते हैं, ये तो पागल कुत्ता है, ये भौंकता ही रहता है, तो कुत्ते को लगाम नहीं लगाते। कुत्ते को जहर दे रहे हैं और वो दे रहे हैं, शादी दे रहे हैं। ऐसे ही ये पागल कुत्ता है, इसको जहर देने की जरूरत है। अच्छा, ये कॉलर ना कुछ और भी आ गए हैं, तो हसन भाई और किसी कॉलर को लेने की इजाजत है? उस्ताद मोहतरम, टिकटॉक के भी कॉलर्स हैं जी, टिकटॉक के ऊपर भी कॉलर है। ऐसा है, एक कॉलर इधर से ले लें, एक इधर से ले लेते हैं। ये नीचे एक बंदा एक बैठा है नीचे। भाई नाम नहीं आपका लिखा, कैमरा ऑन करें। कौन है आप जनाब? यहाँ फेक आईडीज आती हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन। फेक आईडीज को हम कॉल पे नहीं उठाते। जी बोले, कौन है आप? अच्छा चलें जी, एक कॉलर लें इधर से। टिकटॉक से कॉलर लें। काशिफ भाई वापस आइएगा, कॉलर नहीं उठा पा रहा। वो काशिफ भाई का स्क्रीन जो है ना वो पॉज हो गया सारे में, तो कैमरा नहीं खोल सकता। हाँ जी फरमाइए, आप पहले फरमा लें। क्या आप इसका कहते हैं, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैमरा तो आपका, तस्वीर तो आ ही गई है, अब कैमरा ऑन कर ही लें तो बेहतर है। जी फरमाएं। तस्वीर आ गई, लेकिन वो मैं मुसलसल नहीं ऑन करता होता। चलो ठीक है, कोई नहीं। कह रहा आप क्या कहते हैं, इतना चिड़ के क्यों बात करते हैं? कौन सी चिड़के की है जी? मतलब आप कोई भी थोड़ी सी भी बात करते हैं तो वो एक खास किस्म का एटीट्यूड है, इसी लहजे में बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है। अहमद नाम है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप क्या समझते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम क्या समझेंगे? जी बताएं। हमने क्या